Hey everybody, welcome to the podcast again. So today we have a very special guest. I mean, I keep saying that we have a very special guest, but this guest is very close to my heart, is a great friend of mine and is also a community manager and that's how we vibe. So ये वाला podcast हम बहुत bilingual करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे और बहुत bro वाला feeling आएगा. So Shubham bhai, give your intro, tell us what you do and let's dive into it. अरे सर आपने इसमें भी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर ही दिया मतलब आई थिंक बोथ ऑफ अस स्टार्टेड वेब3 में जर्नी साथ में ही सेम टाइमलाइन एक साल के आसपास अभी रिसेंटली वी मेट इन बैंगलोर तो क्रेजी वाइब मैच तो करते हैं पॉडकास्ट सोचा था तो आ गए अब आई थिंक इन पर्टिकुलरली अबाउट मी मैं आई एम एन आर्टिस्ट कुछ कुछ चीजें मैं कम्युनिटी मैनेजमेंट की साइड करता हूँ कुछ कुछ चीजें हैंडल पार्टनरशिप्स बट इट्स अ मिक्स मैच ऑफ थिंग्स आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग विद व्हाट आई वांट टू डाइव इन कंप्लीटली इन वेब3 सो इट्स एन एक्सप्लोरेशन स्टेज अभी मजा आ रहा है ट्राई कर रहे हैं बट आई Correct. थिंक दोनों या है ना तो शुभम भाई व्हाई डोंट यू टेल अस ना कि हाउ डिड यू इवन गेट स्टार्टेड इनटू द वेब 3 स्पेस और कम्युनिटी मैनेजमेंट में कैसे घुसे राइट बिकॉज वी आर ऑफ द सेम एज अभी कॉलेज कर रहे हैं एंड क्या लगता है कि अगर कॉलेज वाला बच्चा ये सुन रहा है बिकॉज everybody wants to get into web3 now and basically the gen z also want to explore so what are your thoughts on that यार व्हेन आई स्टार्टेड आई थिंक वजीरेक्स लॉन्च्ड एक महीना भी नहीं हुआ था एंड hmm. shout out to these artists. I think Hot Frost was there, Kadan Karla was there, Yashika was there, and I saw them on the platform. And I think me and Farhan, we applied at the same time. And I think in around a month in August, if I remember correctly, हमें green list मिल गया था. Like we could, actually mint something on the platform. Okay. And that time Wazirex was quite exclusive. It wasn't free for all, or it wasn't based on invites. It had a full-fledged process, like you have to submit a portfolio, you have Okay. to get in contact with the team on mail. If the portfolio gets selected, then you are in Hmm. the platform. So I think it started June के आसपास पिछले साल, and I was completely into creating NFTs on Wazirex for around a month or so. I created Trinity वाला एक collection, then I created a Illusion वाला collection, और साथ साथ में और भी creators आ रहे थे. Same time I met Abhishek. He's one of the very very good collectors on the platform. And ये चला एक डेढ़ महीना, but I think इसके बाद I met a guy online. Okay. He was managing the socials for. You remember the page of Mark Cuban named @NFT? हाँ याद है I know है ना वो कुछ उसका वो बैन कुछ हो गया ना तब यस यस कुछ यस यस हाँ तो हुआ गया ना हाँ जब वो पेज एक्चुअली में चल रहा था व्हेन वेब3 हम्म स्टार्टेड गेटिंग मेनस्ट्रीम और प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए. हम्म I met Pras and he was handling the social of that ओके @NFT. ओके Yes. ओके ओके And I met him through because I was creating a project called Super Elons, and ओके I wanted the project to go on the story of that page. So हम्म I reached out to Praj and he was humble enough to actually do it. उसके बाद he connected me with a project called Crypto Pills by Misha Klein. ओके And Misha Klein was the artist. If you remember, Eminem का एक tour हुआ था 90s के आसपास, in which these particular pills were the main idea behind them. The गॉट same इट the same artist created a 10K collection of crypto pills, and I think that was my first moderation role. I think उस time पे what we got as payment, or जो भी हमें मिलता है moderation के लिए, what I got was one NFT. one NFT okay Yes, okay I got one crypto pill was that your first as NFT हाँ, okay that was my first NFT that I received, that I haven't समझ bought. गया समझ है गया ना हाँ वो जो पहली चीज मिली थी काम करने के लिए, वो क्रिप्टो पिल्स की एक एनएफटी थी. हम्म अब क्रिप्टो पिल्स के थ्रू आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू अदर डिस्कॉर्ड्स. okay देन आई मेट याडी बॉस ब्यूटी से. हम्म Then I met Christine, Majestic, all of them who are right now in legacy leaders. Let's say BFF, Word of Women, Hug. I think all of them are new heights abhi. But it all started with crypto pills. फिर धीरे धीरे मेटा सिटीजन्स आया, स्क्विशीवर्स आया, देन बॉस ब्यूटीज तो था ही था, देन बीएफएफ आया, हम्म
और ये हम्म, मतलब द चेन कीप्स गोइंग ऑन। आई थिंक चेन फिर रुकनी मुश्किल होती है वंस यू सही स्टार्ट, है, यू नो, तुम दो लोगों को जहाँ को दो और से मिलवा देते हैं। एग्जैक्टली exactly. वो बुल मार्केट के टाइप पे वही था ना। अरे वो दैट वाज एट पीक व्हेन ठीक, एवरीवन वाज हैप्पी। करेक्ट करेक्ट, जब जब सब खुश होते हैं तब तब सब लोग मदद करते हैं। सही है। इट्स अ फैक्ट दैट when you are making 1,000 you can think कि हाँ चलो 10 बांट देते हैं। अब जब हम्म, खुद की जेब में 10 आ रहे हैं तो तुम एक तो नहीं बांटने वाले। द करेक्ट, सेम थिंग वाज बी अब के टाइम में, देयर नो, यू नो, अब कहाँ दिखते हैं वो ट्वीट्स, कनेक्ट विद मी इफ यू आर इन वेब3, ट्रू ट्रू आई ट्रू आई ट्रू, आई टीच यू, आई डू दिस। तो वो सब बुल मार्केट है टाइम। समझ गया समझ गया। सो मतलब व्हाट डू यू थिंक, राइट? अभी let's say you know your first collection was that, and did you हाँ you know did you do art even before NFTs ki matlab NFTs ke हाँ हाँ baad you did नहीं that or नहीं something? नहीं, I have been doing artworks, I Okay, think पिछले 4-5 साल से। I okay, I'll show you this. I'm wearing this T-shirt of, you know, Cyber Crew, okay, and this is actually where it all started. I think ये स्कूल की बात है। okay, हमारे स्कूल में ना एक ग्रुप था which was named Cyber Crew, cyber crew, and okay, that was the technical group of our school. mm-hmm. I was in 8th or 9th when I, you know, started wanting to be in it, and वो then ग्रुप में, I, हाँ उस ग्रुप में मतलब मेरे को वहां पे ओके, जाना था। समझ गया, ओके, एंड और वहां पे जाने के लिए, यू नो, आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग, इलस्ट्रेटर, कुछ ना हम्म, कुछ जो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर्स थे वो सब सीखे। करेक्ट करेक्ट, फिर धीरे धीरे आई थिंक 2020 के टाइम, हम्म, 2019 या 20 में आई वाज द ग्राफिक हेड, और 2019-20 वाले बैच में आई वाज द प्रेसिडेंट। ओके, दिस वाज ऑफ साइबर ग्रुप, एंड हम्म, दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। मेरा पहला ग्राफिक डिजाइनिंग का कंपटीशन आल्सो हम्म, was through, you know, the cyber crew going into a inter school competition. गॉट इट, हम्म। तो डिजाइनिंग तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। समझ गया। सो डिजाइनिंग बहुत पहले शुरू हो गया था, बट देन आफ्टर द एनएफटी सीन केम इन, इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू डाइव इन एंड leverage your skills and get into this, right? हाँ 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 हाँ। Mm-hmm. I So, like it you know, जब NFTs आए तो दो hmm, टाइप के आर्टिस्ट थे। एक जिनको hmm, आर्टवर्क आता था, okay, एक जिन्होंने आर्टवर्क सीखना शुरू कर दिया क्योंकि NFTs hmm, आ गए। NFTs आ गए, तो वो है ना, वो अब कहीं से पैसा बन रहा है तो हम भी कोशिश कर yes, लेते हैं। yes, सेम सेम। सही है। सो शुभम भाई, ये बोलना मेरे को कि अभी कम्युनिटी मैनेजर्स है, राइट? वो कम्युनिटी मैनेजर्स, एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट में होता क्या है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क, सी अभी पेरेंट्स पूछ रहे थे ना कि तुझे जॉब मिला है तो क्या करता है? मैंने बोला हाँ मैं हाँ हाँ डिस्कॉर्ड पे हूँ, कम्युनिटी मैनेजमेंट करता हूँ। मतलब उन्होंने बोला कि हाँ समझ गया, तो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, राइट? हाँ 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 राइट। हाँ। सो व्हाट डू कम्युनिटी मैनेजर्स डू? क्या करते हैं हम लोग? यार ये ना थोड़ा सा मिथ ब्रेकर हो जाएगा। हम्म, कम्युनिटी मैनेजर्स का बाहर नोशन ये है कि हम हम्म, चैट पे बैठ के लोगों को मना कर रहे हैं कि ये करो या ये मत करो। करेक्ट, ये लोगों को लग रहा है कि यही हो रहा है और इनके हम्म, लिए इनको पैसे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी हम्म, जॉब है। हम्म, अ कम्युनिटी मैनेजर इज काइंड ऑफ अ ब्रिज। हम्म, फाउंडर्स ने क्या किया और कम्युनिटी में क्या चल रहा है, इस करेक्ट, चीज को इधर उधर लेकर आना है। हम्म, फाउंडर्स यहाँ पे आएंगे नहीं और कम्युनिटी उन तक पहुंच नहीं पा रही। करेक्ट, तो कम्युनिटी मैनेजर्स एक्ट एज दैट ब्रिज फॉर दैट अच्छा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, हम्म, वेरी बेसिक। अब हम्म, उसके लिए चाहे हम ट्विटर स्पेसेस कराएं, उसके लिए हम्म, हम डिस्कॉर्ड पे इवेंट्स कराएं, उसके हम्म, लिए हम कॉम्पिटिशन्स होस्ट करें, उसके लिए हम चैट में हाइप अप करें, उसके लिए हम ट्विटर पे कुछ नया, लाइक एक ना अभी वर्ल्ड ऑफ वुमेन का ड्रॉप आया। ओके, इट वाज समथिंग विद अ वाइल, I remember, if I remember correctly, and they all started on, हम्म, you know, on Twitter tweeting that help is coming. Every हेल्प इज कमिंग, member, yes, every member who is in World of Women Discord and is active on Twitter and Discord, they had this goal or mission कि आपको ट्विटर पे जाना है and you have to tweet ओके, कि help is coming. You don't हम्म, have to disclose what's happening. You हम्म, don't have to do anything. You हम्म, just have to create a hype कि लोगों हम्म, को लगे कि क्या हो रहा है और मुझे जानना है। ओके, अब ये सारी चीजें पहले से नहीं पता होती। दिस इज व्हाट कम्युनिटी मैनेजर्स कम अप विद। अब इस चीज को लाके एग्जीक्यूट करना हमारा काम। हम्म,
Absolutely, I think absolutely. Because हाँ बोल बोल. like very बेसिक अब इसके अलावा आई थिंक ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि रात के 3 बजे बैठ के हम टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगले महीने की स्ट्रैटेजीज क्या हैं. Correct. तो वो सारे अब वो तो डिटेल वाली बात आ गई, बट आई थिंक ऊपर ऊपर से यही है. Exactly, exactly. Because most Web2 guys I talk to, right? उनको लगता है कि sometimes they even look down upon the entire job. I mean, firstly, they don't consider community management as a job profile, ना. अगर या मतलब तू Amazon में या Wipro में काम कर रहा है, मतलब तू जॉब कर रहा है. अगर तू हाँ Discord हाँ के ऊपर कर रहा है, मतलब तू बस बकचोदी कर रहा है, and you're able to somehow make money, and it's not gonna last long, right? So that's हाँ what they think. So can you also tell us कि अभी founder है, right? For every project there's a founder, there's an artist, there's a dev and website and everybody. So where do you think a community manager falls here, right? So what role does he play in the ecosystem here? Because you clearly explained us कि हम लोग क्या करते हैं, right? And even discussing की strategies क्या है, meetings attend करना, and talking about how we can take the project forward. So ये बताना शुभम. हाँ हम्म. यार एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. एक हम्म. प्रोजेक्ट है, उसका नाम नहीं लूंगा, बट हम्म. दे आर लुकिंग फॉर अ कम्युनिटी मैनेजर अभी. ठीक है. Okay, okay. और व्हेन आई टॉक टू द फाउंडर मेरे को पता हम्म. लगा कि हम्म. फाउंडर इज लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कम्युनिटी से बात कर पाए कि Okay. ये काम हो चुका है, अब इसको बताना है कि भाई ये काम हो गया. हम्म. डिस्कॉर्ड मतलब अ कम्युनिटी मैनेजर हैज टू बी द वॉइस ऑफ अ प्रोजेक्ट. हम्म. अगर आपके पास एक अपफ्रंट लीड नहीं है बात करने के लिए कि आप कर क्या रहे हो, तो हम्म. आप कहीं नहीं पहुंचने वाले. हम्म. नो मैटर हाउ मच यू वर्क, इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे दैट व्हाट यू आर डूइंग, हम्म. तो उसके बिना काम नहीं होगा. अ रिसेंट अनदर एग्जांपल, हम्म. I met a old friend and a senior recently, हम्म. और he is building a project हम्म. and it's a very technical project. ठीक है. Okay. But I asked him कि इसी चीज को explain it to me in layman terms, Okay. which wasn't मतलब वो कर नहीं पा रहा था. Okay. एंड माय सिंपल आइडिया इज कि अगर कोई बंदा मेरे को ही नहीं समझा पा रहा हम्म. कि वो चीज है क्या, तो वो चीज हम्म. घंटा VCs को समझ आएगी, वो चीज घंटा फंड रेजर्स को समझ आएगी, और वो चीज घंटा कम्युनिटी को समझ आएगी. Correct. और जब तक आपकी चीज समझ नहीं आएगी तब तक आपकी चीज बिकेगी नहीं. Correct. Exactly. Exactly. And I तो like the way you. समझाना हम मतलब वो छोटा सा हम्म. समझाना हमारा काम, हम्म. बाकी बनाना तुम्हारा काम, और लोगों का Exactly. खरीदना उनका काम. वेरी सिंपल. Perfect. 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 I think you just laid it down, right? कि हम लोग bridge है, right? हम bridge है. हाँ वही. अब अभी founders तो ये सब नहीं कर सकते ना. Founders are building, they're busy building the product, and they just can't jump in हाँ here and do this. And right. वो तो है ही ना. हम्म. अरे उनपे भाई टाइम नहीं है. ठीक है. हम्म. anyone who is building a project ना, he हम्म. loses the sight of time, day night, anything. अगर Correct. कोई पैशनेटली बना रहा है तो उसके पास टाइम नहीं है भाई किसी को समझाने का कि मैं यही बना रहा हूँ या मैं नहीं बना रहा हूँ. हम्म. Correct. उसके लिए उसको बनना चाहिए. Yes. Yes. So, coming back to the point again, and okay. So let's our topic, right? Our topic is about community management, psychology, and of course, Charcha. So, if we digress a little bit and talk about how psychology plays a role in this, right? Yeah, मैं बहुत सारा divert हो रहा हूँ, but we'll come back to the points again. क्या लगता है, right? कि we're just keeping it natural, right? We're just going with the flow. So ये हाँ psychology का part बोलना मेरे को मतलब NFTs में how is psychology involved, and what are different biases involved, and if any, and what are your thoughts on that? यार आई स्टार्टेड लर्निंग थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बारे में 2-3 साल पहले. Okay. मतलब इट वाजंट इन माय सिलेबस और समथिंग, बट क्योंकि मन कर रहा था. Okay. एंड देन आते आते क्योंकि कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स था तो उसको मिक्स करना शुरू कर दिया. Hmm. तो अब हुआ क्या, व्हेन NFTs एंड Web3 स्टार्टेड, Mm-hmm. काफी क्लियर इंडिकेटर था कि यहाँ पे लोग ये तो समझ रहे हैं कि पैसा इन्वॉल्व है, Hmm. बट ये नहीं समझ रहे कि वो पैसा इमोशन की वजह से लग रहा है. Okay. I'll give you a छोटा सा एग्जांपल. Okay. BAYC बहुत ऊपर चला गया. ठीक है. Yes. और Yes. नेक्स्ट
next project comes in saying that we will be the next BAYC. अब एक कंज्यूमर के लिए ये कोई लिखित नोट नहीं है स्टैम्प पेपर के साथ, ये उसकी होप है कि हाँ भैया जो ये कह रहे हैं ये सच हो सकता है, तो मैं भी इसमें ट्राई कर लेता हूँ. दिस इज प्योर होप एंड नथिंग एल्स. ओके. बिकॉज कुछ भी एविडेंट होने के लिए यू नीड अ श्योर शॉट टेक्निक, जो अभी तक स्पेस में डेवलप नहीं हुई है और आई थिंक हो भी नहीं सकती. साल हुआ है स्पेस को, मतलब जब से हम आए हैं, आई थिंक जब से मेन स्ट्रीम हुआ है कंटेंट तब से साल हुआ है. तो आई थिंक इतनी जल्दी कोई भी पक्की चीज तो नहीं पता. सो एवरीवन इज प्लेइंग या तो दिमाग से या दिल से. और दिमाग से भी सिर्फ इनिशियली खेला जाता है. आई मतलब देख, आई टुक अ ON1, ठीक है, मतलब ओनी okay, Oni okay, NFT. okay, Yes. okay, Oni NFT was kind of my goal when I started. ठीक है. okay, okay. And I got it 3-4 महीने पहले. I got it for 0.75 ETH. The current floor is 0.3. And there is no news around कि ये floor बढ़ेगा. Correct. कायदे से और तमीज से अगर यही चीज स्टॉक्स में हुई होती, I would have cut my losses. I would have made me understand कि भाई चुपचाप जो मिल रहा है उसे लेके चलो, कि इससे पहले ये जीरो पे जाए. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बट ये चीज NFTs में नहीं होगी क्योंकि अब उस PFP से मैं कनेक्ट हो गया हूँ. अब मुझे उस PFP को बेचते हुए दर्द होगा कि भैया ये तो मैंने बहुत शिद्दत से ली थी, इसको मैंने कहा था कि मैं ये लूंगा कभी जिंदगी में, और मैंने ले ली, अब मैं इसको कैसे बेच दूं. और ये चीज बहुत लोगों के साथ है. पीपल हैव यू नो फॉरएवर वॉलेट्स विद देम कि इन चीजों को हम कभी नहीं बेचेंगे चाहे ये जीरो हो जाए. एग्जैक्टली. which is a emotional connect, which is not a mind वाला connect. क्योंकि ये जो सट्टा है ये तब लगता है जब आपकी जेब में मिलियंस हो. करेक्ट. हमारी जेब में ही हजारों नहीं है, अब हम तब भी ये करके बैठे हैं, तो समझो ना, मतलब कोई बंदा है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. आई थिंक सही है ना शुभम भाई, बिकॉज मतलब तू बोल रहा है कि you know for us it's very easy to discuss ना कि I have a connect with that PFP, like in layman terms. तो बता ना, मतलब connect with PFP, like I mean if you're explaining it to someone. इसको लेमन टर्म्स में समझाता हूँ. हाँ. स्कूल टाइम याद है? स्कूल टाइम में ना हमें एक स्टिकर्स मिलते थे, कुछ स्टार्स मिलते थे वेरी गुड वाले. हाँ. उन स्टार्स की कोई वैल्यू नहीं थी. बट उन स्टार्स से ना बहुत प्यारा सा कनेक्ट था कि भाई मैंने कुछ किया है. Correct. उसके लिए मेरे को मिला है, इसको आई सेव इट. मैं इसको कैसे भी बात तक बचा के रखूंगा. आई स्टिल हैव अ ओल्ड नोटबुक ऑफ माय स्कूल लाइफ एज अ मेमोरी. यस. तो अब चाहे चीज वो 10,000 की बिक रही हो या 10 लाख की, करेक्ट, अब मेरे लिए वो मेमोरी है. सही है. सेम चीज फॉलो Web3. एग्जैक्टली. और वो डेयरी मिल्क का वो कवर आता था ना, सिल्वर फॉइल. हाँ, सिल्वर फॉइल वी यूज्ड टू पुट इट इन द बुक फ्लैट करके. हाँ, क्या अच्छा है. तो करेक्ट. ये छोटी छोटी चीजें ना, मतलब दीज गो लॉन्ग वे. मतलब अगर आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कंज्यूमर मार्केट है कैसी. Web3 में there's a reason we called दो अलग कैटेगरीज, फ्लिपर्स, होल्डर्स, पेपर हैंड्स, डायमंड हैंड्स. हाँ, तो टर्म्स दे दिए हैं. एग्जैक्टली. लैंग्वेज वही, बट कॉन्सेप्ट तो वही है. वही ना. एग्जैक्टली. हाँ. तो इनके बारे में क्या लगता है, जो लोग है ना, दे आर जस्ट बाइंग PFPs नॉट बिकॉज, मतलब तेरा तो डिफरेंट था ना. you wanted to own that. You wanted that in your wallet. So what about people who are just buying it just for a flip? अभी 0.2 है, मैं खरीदूंगा, 0.7 को बेच दूंगा. I mean that is how the market is functioning right now also. So क्या लगता है? अरे इसका ना बहुत छोटा सा साइकिल है, बहुत छोटा. अभी मीटिंग के पहले we were discussing about ledger, ठीक है? करेक्ट. When we were talking about ledger, the first thing that we discussed was the floor price. करेक्ट. अब हमने फ्लोर प्राइस इसलिए डिस्कस किया क्योंकि उस पर ही डिपेंड करेगा कि हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे. यस. और उस पर ही डिपेंड करेगा कि आगे उसकी क्या वैल्यू हो सकती है. हाँ. अगर हमें इससे मतलब होता कि वो लिमिटेड एडिशन हमें मिलना है भाई, तो हम फ्लोर प्राइस की बात करते ही नहीं.
then we would have directly gone to that there's a limited edition ledger going on, you have to mint Correct. it. Correct. अब वो कितने का है वो बाद में देखेंगे. तो the reason कि ये इकोनॉमिकल प्ले बीच में आ जाता है या मॉनेटरी एस्पेक्ट कहीं से भी कूदता है ना, इज बिकॉज हर किसी को किसी ना किसी चीज पे रिटर्न चाहिए. सेम कंडीशन अगर तू 1v1 आर्टिस्ट में लेगा, some collectors out there say that they are betting on artists. Okay. That they are investing in 10 different artists, and some of them might hit off in the future and their NFTs will be valuable. तो जो चीज उन्होंने इनिशियली खरीदी थी हो सकता है वो आगे जाके और वैल्यूएबल हो जाए. सेम चीज PFPs के अंदर हो सकता है और वैल्यूएबल हो जाए. अरे कितने प्रोजेक्ट्स आए गए भाई, मेटावर्स आया, कहाँ गया, नो वी हैव नो क्लू. डैपर डायनोस इज शैडोज में. अभी एक लायंस का था, व्हाट वाज द नेम, देयर वाज अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट वाला, एक लायंस प्रोजेक्ट आया था. ओके. इट ऑल वेंट डाउन. वो धीरे धीरे, यू गेट द पॉइंट. वो क्या होता है बाद में जाके. Exactly. But then, so I mean, Itsuki का तो पता ही है ना, Itsuki का तो पता ही है. So tell me what Itsuki did differently, यार, है ना? How did Vishwas, he worked for like 7 months, and how was he able to sell it off for within 12 hours? 12 घंटे में, like the first Indian project to sell it off in 12 hours. The reason that I am quite well, or I think the reason is Vishwas worked on it with his heart. Correct. उसने time लगाया. Thankfully, I'm so thankful that a project in India actually put in time. I'm not saying that there are other projects जिन्होंने time नहीं लगाया. बहुत से projects हैं जो आए हैं. I still I'm still very खुश कि Vibeheads आया था, because Vibeheads का production बहुत crazy था, बहुत crazy. I'll still go back and buy a Vibeheads जो एक Indian project है, just because of its art. Same CSS Club आया था on WazirX, and it had a beautiful community. Crypto Soga, Mr. Kunal Kamble, he was my first collector WazirX पे. Okay. He was able to create a very beautiful community. क्योंकि इंडिया में उतनी strong community बनाना आसान नहीं है. आसान नहीं है, exactly. Especially when you are on a BNB chain, you are not on Ethereum. तो काफी projects आए हैं, but I think what Itsuki did differently was with their approach of how they went with the socials. They did not target the Indian market. They were very clear about that we are an Indian project. The founders are Indian. Everyone was aware of that fact, but किसी ने ये नहीं बोला कि ये project India के लिए है. ये project India से है. That was the main point. Yes. It is an Indian project, but not, maybe not made for India itself. And I mean, yeah, there are Indian collectors, of course, लेकिन India के लिए बना नहीं है, right? And that is also the barrier for entry and everything. पता है, I think एक बहुत major issue अभी space के साथ है कि people start linking अपने projects या अपनी identity geography location के साथ. Okay. मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट आया है, बहुत बार ये कहा जाता है कि इट्स फ्रॉम इंडिया, इट्स फ्रॉम यूएस, इट्स फ्रॉम जर्मनी और एनीवेयर एल्स. बट इन Web3 और any online space, that fact should not matter, right? Exactly. That's the whole point of decentralization, na? Why would I care if you are from India or anywhere? हाँ, मैं करूँगा क्या आपकी लोकेशन का भाई? Very simple. Okay. So Shubham, let's talk about the utility part of NFTs, right? So what utility do even NFTs hold in the first place? Because बहुत सारे अभी जो bear market में आ रहे हैं ना, they're doing a lot of free mints so that they don't attach themselves with a lot of utilities and stuff like that, because they just sell it and they're not responsible to do anything else, right? And they make money on the royalties. But then previously there were NFTs जिसमें utility था, मतलब आप खरीद रहे हो तो कुछ मिल रहा है आपको. So can you expand on what utility is, क्या हो रहा है ना?
I'll go दोनों पॉइंट्स पे, यूटिलिटीज हाँ. पे भी और फ्रीमेंट्स क्यों आए उस पे भी, ठीक है. हम्म. यूटिलिटीज इज जस्ट अ वे टू गिव मोर इंसेंटिव टू अ प्रोडक्ट. इसको रियल लाइफ में थोड़ा देखते हैं. एक लैपटॉप मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में फॉर 35,000. Okay. Same laptop you're getting online for 34,000. Okay. But when you go into the offline market, you get the laptop, but you get a laptop bag, you get some accessories, you get a 1 year extended warranty, and you get a cashback offer on HDFC bank account. Hmm. So monetarily, you might be down 1K. Hmm. But through those incentives, you might think कि 1,000 रुपए से इनकी वैल्यू तो ज्यादा ही है. Hmm. So utilities is just another way to add monetary value without showing numbers. Okay. अब उसको किस सेंस में दिखाना है. मान ले हमने एक NFT लिया, ठीक है. हाँ. हाँ. एक NFT है who is just offering me एक PFP, मतलब येलो फोटो लगा लो DP. Okay. One NFT is offering me a merch box which is quite Web2, but still I'm getting a merch box. I'm getting a free subscription for their platform for 6 months. I'm getting future perks, like let's say they launch another product and I get 25% off. And these things are limited to the NFT holders. Okay. तो अब चाहे दोनों का प्राइस सेम हो, मैं ये वाला लूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे फायदे ज्यादा हैं. वेरी सही सिंपल. बात. फ्री मिंट्स क्यों आए? पिछले एक साल में NFT मार्केट में ना छोटे छोटे ट्रेंड पीरियड्स आए हैं. स्टार्टिंग में इट वाज प्लेन PFPs बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज स्टार्टिंग, तो कुछ भी जो स्टार्ट हुआ वो इनिशिएट होता चलता गया. देन वी हैड 3D NFTs. मोर देन गेमर्स के टाइम जब भी एक 3D स्कल्स आए थे, एक 3D एप्स आए थे. देन वी हैड एनिमेटेड NFTs. आई थिंक DK मोशन हैड अ ह्यूज ब्लास्ट ऑफ उस टाइम पे. उन एनिमेटेड NFTs के बाद वी हैड म्यूजिकल NFTs. म्यूजिकल NFTs के बाद वी रिसेंटली हैड फ्री मिंट्स. तो क्योंकि मार्केट बहुत छोटा है ना, तो मार्केट में लोगों को रखने के लिए यू हैव टू चेंज द हाइप बार बार. करेक्ट. तो फ्री मिंट्स इसलिए आए क्योंकि लोग पैसे दे दे के थक गए थे. द प्रोसेस ऑफ गिविंग ETH एंड रिसीविंग योर NFT वाज टायरिंग नाउ, क्योंकि वो साल भर से हो रहा है. ठीक है. द प्राइस वाज फ्लक्चुएटिंग. हाँ, 0.01, 0.1, 0.1 ETH भाई, 1.5 ETH के मिंट्स हुए हैं. बट अब कुछ नया लाने के लिए लोगों ने बोला चलो फ्री में करते हैं. और फ्री में करने से सिर्फ एक चीज बहुत अच्छी हुई कि कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग बन गई. कैसे? लोगों ने चाहे फ्लिप करके पैसा कमाया, हाँ. बट बहुत से लोगों ने ये सोचा कि यार फ्री में ही तो मिली है, तो रुक के देख लेते हैं. Okay. और जैसे ही बंदा एक प्रोजेक्ट में रुक जाता है ना, द फाउंडर्स एंड द टीम इज स्मार्ट इनफ टू रिटेन इट. Okay. अगर एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई, कम्युनिटी को रखना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि कम्युनिटी आपके सामने आ गई है. दिख रहा है, ऑडियंस दिख रहा है वहां पे. हाँ, देख, हमें क्रिकेट मैच देखने गए, ठीक है. हाँ. नाउ वी हैव ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर मेट्रो में, फिर हमने ऑटो लिया और फिर हम सीट पे जाके बैठ गए. अब मानो या ना मानो, वापस जाने में आलस आएगा. क्योंकि भाई इतनी मेहनत करके आए हैं. अब चाहे खर्चा ना हुआ हो, थक तो गए. Exactly. Because you had to suffer to go to that process, right? अब अगर आ गए तो थोड़ी देर मैच देख लेते हैं. The same thing happens in NFT projects. अब चाहे वो फ्री में एंट्री थी, but people stayed for the community. Let's see how the people are. And there's a reason कि अभी जो हमारे प्यारे से goblins हैं who are at a horribly huge price for an artwork that no one really loves or like, तो वो इसीलिए है क्योंकि community बहुत strong है. Correct. Very 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 basic. सही है, सही है. And I don't think goblins have any kind of utility attached to them, right? कुछ नहीं है. I haven't deep dived into goblins, but what I know of is कि goblins ने ना अपना
मार्केटिंग बहुत प्यारा लेवरेज किया था. हम्म. Someone leaked a older version of the BAYC roadmap ओके. और उसमें ना कहीं गॉबलिन्स लिखा हुआ था. ओ. तो अब ये नहीं लिखा था क्या है क्या नहीं है, गॉबलिन्स मेंशन था. ओके. तो उसी के अगले 1-2 दिन में जब वो लीक हुआ, एक प्रोजेक्ट मार्केट में आ गया गॉबलिन्स के नाम से. वाओ. एंड एवरीवन स्पेक्यूलेटेड कि भाई ये तो BAYC का हिडन प्रोजेक्ट है, which they are not telling it to anyone, but it is of BAYC क्योंकि ये पुराने रोड मैप में था. तो वो इनिशियल हाइप इसकी वजह से मिल गई, एंड देन पीपल हेल्ड ऑन. And once you hold your assets, they increase in value because you don't want to sell it. भाई once you hit 10 इथेरियम फ्लोर प्राइस पे ना, हाँ. आपने पिछले 2 महीने में जो भी किया है घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, ओके. क्योंकि नाउ यू आर अ ब्लू चिप. हाँ. अब आपका फ्लोर प्राइस 10 इथेरियम पे है, यू आर इन अ ब्लू चिप कैटेगरी. नो मैटर यू डिड अ फ्री मिंट, नो मैटर हाउ यू लेवरेज द मार्केटिंग स्टंट, आप जैसे पहुंचे हो आप ब्लू चिप तो हो. सेम करेक्ट. चीज गॉब्लिन्स के साथ. और आर्ट वहां पे मैटर नहीं होता ना. ना 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 भाई, आर्ट स्टॉप्ड मैटरिंग बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले. अब आई थिंक आर्ट का तभी बंद हो गया था, आई थिंक व्हेन पिक्सेलेटेड एनएफटी स्टार्टेड कमिंग इन. रॉक एनएफटीज आ रहे थे, जस्ट डिफरेंट शेड्स ऑफ रॉक्स. करेक्ट. एंड इट ऑल स्टॉप्ड मैटरिंग वंस पीपल रियलाइज्ड कि सिर्फ आर्ट से कुछ नहीं हो रहा. अब या तो यूटिलिटी चाहिए, या तो कम्युनिटी चाहिए, या तो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, या टीम छोड़ो बैकिंग बहुत ज्यादा चाहिए. तो आर्ट का वहां पे मैटर करना थोड़ा कम हो गया था. Okay. Okay. So I think the provenance of the NFT, yeah, the provenance of the project also matters, ना कि मतलब ये मुझे हाँ पता नहीं था कि goblins वाला क्या है, but just speculating again, right? What if it was never the BAYC's old roadmap? हाँ, क्या क्या पता. Exactly. हाउ डू वी नो. लीक हुआ था ना, Exactly. BAYC ने नहीं Exactly. डाला था, लीक हुआ था. Exactly. क्या Leak हुआ पता था. किसने खुद लीक कर दिया. हाँ, हो Exactly. सकता है Exactly. कोई गॉब्लिन का ही पुराना टीम मेंबर हो जिसने अलग आईडी से लीक कर दिया, हु नोस. Correct. तो कुछ भी हो सकता है. Correct. 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 So one interesting topic that I want to talk about is jobs, like just jobs. ना Web3 के jobs के बारे में बात करना है मुझे, because there are 20-year-olds जिनको Web3 हाँ में जाना है. उनको पता हाँ नहीं है कि मतलब जॉब क्या करना है. मतलब वो लोग आर्टिस्ट नहीं है, उनके पास कोडिंग का स्किल नहीं है, बट उनको कुछ तो करना है, राइट? एंड दे आर विलिंग टू लर्न, दे आर विलिंग टू स्पेंड टाइम ऑन डिस्कॉर्ड, विलिंग टू वॉच पॉडकास्ट लाइक दीज. ट्विटर पे हाँ. है ना? तो उनको जॉब्स, इफ दे वांटेड, लाइक फ्लैट क्वेश्चन, कैसा मतलब रोड मैप क्या होगा? फ्रीलांसिंग करना, कंट्रीब्यूट करना, कैसे कैसे करेंगे? यार थोड़ा लंबा हो जाएगा ये. मतलब देख, 2 साल हम्म. पहले ना जब हम्म. कोविड हिट हुआ, हम्म. तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए. हम्म. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. हर हम्म. तीसरा बंदा वुड टेल यू टू इन्वेस्ट. हम्म. हर तीसरा बंदा. हम्म. और जैसे ये हुआ ना, पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई पैसा जरूरी है, तो थोड़ा ढंग से इस्तेमाल करते हैं. अब हम्म. जैसे ही कोविड खत्म हुआ, Web3 आ गया. हम्म. तो अब जब पैसे की बात चल रही थी और ऐसी कोई चीज आ गई जहां पे बहुत सारा पैसा बन रहा है, हम्म. तो इट वाज अ क्लियर कट सोल्यूशन कि भाई यहाँ पे एंटर होते हैं. हम्म. वेरी वेरी क्लियर कट. अब हाँ. वी पर्सनली नो लोग जो 15-16 के भी हैं स्पेस में, हम्म. एंड वी नो एग्जैक्टली. पीपल जो 50-60 के भी हैं. तो एज का फैक्टर तब आएगा जब आप अपनी एज की वजह से कुछ हैंडल ना कर पा रहे हो. ओके. मतलब मान ले मैं अभी 20 का हूँ, ठीक है. हाँ. आई एम वर्किंग इन Web3 और मैं कॉलेज थर्ड ईयर में हूँ. हाँ. अब मैं अपनी एज की कॉन्वर्सेशन तब लाऊंगा जब मुझसे कॉलेज और Web3 दोनों साथ में हैंडल नहीं हो रहे. हम्म. जब एक की वजह से दूसरे पे नुकसान होना शुरू हो गया है, ओके. तब मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं 20 साल का हूँ, मेरे पे इतनी सारी दिक्कतें हैं, मेरा कॉलेज मैनेज नहीं हो रहा है. हम्म. बट इफ आर यू नो मैनेजिंग कॉलेज या कुछ भी और जो आप साइड में कर रहे हो एक साथ, हम्म. तो
एज कॉन्वर्सेशन तो हट जाती है, फिर तो हट जाती है, फिर इट डजंट ठीक मैटर। है, ठीक है, ठीक है। अब once a person has started going into Web3, ओके। मान ले किसी को Web3 के बारे में पता लगा, मान ले हमारे दोस्त हैं, मेरे हाँ, कितने हाँ, दोस्त हैं जो मेरे से पूछते हैं कि क्या है Web3, कैसे चल सही रहा है। है, सही है। दुबई कैसे गया, आईफोन कैसे लिया? हाँ हाँ तो इट्स वेरी सिंपल वो हम्म। देखना कि क्या हो रहा है। अब हम्म। अगर उसको थोड़े स्ट्रक्चर्ड वे में समझना है और मान ले कोई एंटर कर रहा है, तो उसके सामने दो लाइंस हैं, हम्म। टेक्निकल रोल्स और नॉन टेक्निकल रोल्स। करेक्ट। पहले आइडेंटिफाई करो कि किस कैटेगरी में हो, हम्म। या फिर ये मन बना लो कि किस कैटेगरी में जाना हाँ। है ना। क्लियर कट। मतलब हाँ, मतलब सोच लो। अब ऐसे कैटेगरीज में बाउंस मत करो। हम्म। कैटेगरीज में बाउंस ना कर, मतलब कैटेगरीज में बाउंस जॉब वाइज मत करो। हम्म। सीखने के लिए तो कुछ भी सीखो, उस पे तो कोई क्या ही बोलेगा। हम्म। यू कैन बी एन आर्टिस्ट हु इज लर्निंग कोडिंग एंड इज एन आर्किटेक्ट। वो कुछ भी हो सकता है, बट एक लाइन चूज करनी पड़ेगी जिसमें आपको काम करना है टू बिल्ड योर ओन क्रेडिबिलिटी। मैं अभी अपने आप को कम्युनिटी मैनेजर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उस स्पेस में हूँ, और मैं अपने आप को आर्टिस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मैं साइड में करता हूँ, वो मैं हम्म। अपने लिए कर रहा हूँ। तो एक प्रोफेशनल लाइन चूज करना इज वेरी पहला इनिशियल बेस ओके। स्टेप। उसके बाद यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि कहाँ कहाँ पे फिलिंग स्लॉट्स हैं। एक अनसैचुरेटेड मार्केट में जाना इज बेटर देन एक सैचुरेटेड मार्केट में ट्राई मारना, क्योंकि इनिशियली एक एक्सपीरियंस मिल गया कि भाई काम कैसे हो रहा है, दैट्स बेटर देन रियलाइजिंग कि यहाँ पे तो काम हो ही नहीं पा रहा है। हम्म। व्हेन आई गॉट इनटू मॉडरेशन क्रिप्टो पिल्स के अंदर, तब मॉडरेटर्स की कमी थी क्योंकि मॉडरेटर्स थे ही नहीं। पीपल डिड हम्म। नॉट नो व्हाट मॉडरेटर्स डिड। हम्म। अब तब के टाइम में हो सकता है ग्रोथ मैनेजर्स की भी कमी हो, इवन प्रोजेक्ट्स की खुद की कमी हो, भाई फाउंडर्स ही नहीं है। तो मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, बट आई चोज दिस लाइन करेक्ट। बिकॉज आई वॉज एबल टू ऑप्ट इन, क्योंकि मेरे को हम्म। ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैंने भाई जान पूछ के ऐसे सर नीचे रख के बोल दिया कि मैं मॉडरेशन ही करूंगा। हम्म। और इनिशियल डेज में जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आ रही है उसको पकड़ लो। पकड़ लो, सही है। हाँ, वेरी वेरी इजी टू गो विद कि भैया जो चीज सामने है उसमें चले जाओ। हम्म। अब सही है। ये मिलने के आई थिंक जितने भी लोग एंटर कर रहे हैं, दे माइट, ये वैसे वो खुद रियलाइज कर लेंगे, बट हमारे बोलने से क्या पता फर्क पड़ जाए कि स्टार्टिंग में मॉनेटरी वैल्यू या रिटर्न नहीं मिलेगा, हम्म। सही जो बात। बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। करेक्ट। अब यही मतलब, अब ये सेम चीज स्टॉक्स के अंदर है, क्रिप्टो के अंदर है, एनएफटी प्रोजेक्ट्स के अंदर है, डाउस के अंदर है, हर चीज के अंदर है। whenever a person enters, he enters with the mindset कि मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। it is going to be very big, मैं करोड़पति लखपति सब हो जाएगा। तो उस चीज को थोड़ा सा हटाना इनिशियली पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ घिसानी पड़ती है भाई। करेक्ट। स्टार्टिंग में 3 महीने मॉडरेशन करके सिर्फ एनएफटीज मिले हैं जिनकी वैल्यू घंटा कुछ नहीं थी, हम्म। खाली वॉलेट पड़ा था। तो वो धीरे धीरे करना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो फेज हर एक फील्ड में है। आई डोंट थिंक वो वेब3 से रिलेटेड है या बचा हुआ है। आई थिंक वो सही बात सबके है। अंदर ही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सारे फील्ड्स में है। और उसके बाद अब उसके बाद फिर जॉब बोर्ड्स आ गए। हम्म। उसके बाद तुम ऑनलाइन साइट्स पे जाओ, ट्विटर पे जाओ। आई यार मेरे को आई मेंशनड अभिषेक हु वाज अ आर्टिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑन वजीर एक्स। यस, यस। अभिषेक अभिषेक भैया ने मुझे बोला था कि ट्विटर पे आईडी बना। आई डिड नॉट हैव आईडी अगस्त तक भाई, मैं ट्विटर पे मेरा भी नहीं सेम था केस है। अगस्त। ऑलमोस्ट हाँ, हाँ, मेरा भी सेम केस, सही है। आई वाजंट ऑन ट्विटर और एनीथिंग, और अभिषेक एग्जैक्टली। भैया ने बोला कि मेक अ फकिंग आईडी ऑन ट्विटर, भाई क्या कर रहा है। सही है। तो बहुत मेजर एलिमेंट अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो किसी स्पेस में, इज टू गो आउट इन दिस स्पेस। हम्म। भाई जितने लोगों से बात कर सकते हो प्लीज करो। सही कुछ है। लोग सोशल नहीं होते, बनना पड़ेगा। हम्म। if until and unless you are a back end builder, you know if you are working alone for days and nights and you have to produce and give a product, if you are not in that position you'll have to socialize. करेक्ट।
अरे हम चूतिए थोड़ी हैं, हम बैंगलोर घूम रहे हैं भाई, दुबई एग्जैक्टली, जा रहे हैं, और एग्जैक्टली। हमें खर्चा करके मजा थोड़ी आ रहा है भाई। हम्म। जितना एग्जैक्टली। खर्चा हमारा होगा, हम भी बचा सकते हैं। सही है, लेकिन सही है। अगर मैं बैंगलोर ना जाता तो ये पॉडकास्ट ना हो रहा होता। एग्जैक्टली, वी वुडंट हैव अगर मेट, अगर ये पॉडकास्ट हुआ ही नहीं। हाँ अगर मैं दुबई में नहीं होता, तो दुबई में मेरे को 3-4 लोग ऐसे मिल रखे हैं जो अभी तक ज्वाइंट हैं और जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मैं उनको ना मिलता। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ेंगे कि भाई सही है, क्या सही है। पता रिटर्न मिल जाए। Perfect, perfect. So maybe, it's also about putting yourself where people in the space already are, है ना, जो already Web3 में है. See, we can socialize on Discord, we can do it on Twitter. Of course, I met a lot हाँ of people on Twitter, on Discord who are, amazing connections right now. लेकिन हम्म, वो connections है, right? बस connections हाँ है. वो हाँ रिलेशनशिप जब तब बिल्ड होती है जब हम इन पर्सन मिलते हैं, राइट, व्हेन वी हम्म, एक्चुअली शो देम आवर वाइब कि हम ये करते हैं एंड हाँ दिस इज अस. एंड आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉपर रिलेशनशिप, द बॉन्ड जो है ना, वो बॉन्ड बिल्ड होती है. एंड देन इट कंपाउंड्स ड्रास्टिकली. भाई यार, पता है जो रियल लाइफ मिलने वाला सीन है ना, हम्म, अ, इसके अंदर आई थिंक आई वुड बी हैप्पी इफ आई से कि थैंकफुली आई वेंट टू अ गुड स्कूल हम्म, एंड थैंकफुली आई एम स्टिल इन कॉलेज। हम्म, क्योंकि फॉर एवरीवन आउट देयर हु थिंक्स कि कॉलेज ड्रॉप कर लेते हैं या कॉलेज में ड्रॉप करना पड़ेगा इफ आई वांट टू परस्यू एनीथिंग, व्हाट आई थिंक इज कि स्कूल या कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं है। स्कूल या कॉलेज तुम्हें बस परेशान करने के लिए है, एंड द मोमेंट यू लीव इट इज द मोमेंट यू गिव अप टू दैट परेशानी। भाई तुम्हें परेशानी मैनेज करना ही सिखा रहे थे, तुमने वही छोड़ दी। हम्म, मैं अगर स्कूल और कॉलेज लाइफ में ये चीजें एक साथ हैंडल ना कर रहा होता, तो हो हम्म, सकता है मुझे टाइम मैनेजमेंट या वर्क मैनेजमेंट आता ही ना। पॉसिबल है, हो सकता है। अगर मैं स्कूल लाइफ में इतना इवेंट्स वगैरह में नहीं होता तो मैं लोगों से बात नहीं कर पाता। सही अगर बात है. मैं कॉलेज में नहीं होता तो मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, वो नहीं होगा। हम्म, और बहुत से लोग हैं भाई ऐसे, आई हैव मेट पीपल ऑन डिस्कॉर्ड एंड चैट हु आर लाइक सुपर एक्सट्रोवर्ट, हम्म, बट द मोमेंट यू मीट देम इन रियल लाइफ, it's a completely different person. हम्म, They'll be all happy and jolly on text. They'll be very कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, बट द मोमेंट यू मीट देम इन रियल लाइफ, इट्स अ completely different vibe, very different. और दिस इज बिकॉज रियल लाइफ में एक अलग कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और ऑनलाइन अलग। अब लोगों में जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस था रियल लाइफ का, उसकी कोविड ने वहां मैंने कर दी। हम्म. क्योंकि द मोमेंट कोविड केम इन, आई थिंक करेक्ट, पीपल करेक्ट, स्टार्ट करेक्ट. staying at home. भाई हम्म, I'll give you an example. मेट्रो के बाहर या मेट्रो में, आई थिंक हम्म, वैशाली ले ले या दिल्ली ले ले, मास्क पहनना इज नॉट कंपल्सरी। हम्म. ओके, एंड इट्स नॉट इवन एज मच एडवर्टाइज्ड और एडवाइज्ड एनीमोर। ओके. आई हैव सीन पीपल वेयर मास्क because they don't want to show their face in the public. हम्म. लोग मास्क पहनते हैं ताकि वो अवॉइड कर पाए कुछ भी सोशल इंटरेक्शन, जो बहुत Fuck, फकौल है, fuck. जो बहुत फकौल है। Correct, अगर correct, ये चीज correct, correct. आगे बढ़ गई, क्योंकि भाई मास्क पहनना ना एक सेफ्टी नेट होता है, टेल यू। मास्क पहनने से आपको पहचानते कम लोग हैं और आपको रीच आउट कम लोगों को करना पड़ता है। you'll approach a person without a mask first rather than a person with a mask, I can bet. Yes, you do yes. you do a 100% fucking ना. test, I can bet. हाँ, तू 10 लोग खड़े कर दे भाई, if 5 हम्म. people are without a mask and 5 with a mask, I can bet you'll approach the ones without the mask first. Exactly. और इतना बड़ा हिट है ना ये लोगों की पर्सनालिटी पे, जो लोग रियलाइज ही नहीं करते। क्योंकि Correct, correct, पहन correct. लिया मास्क, अब कौन पहचानेगा, अब हम हेडफोन्स लगा कूल लगेंगे, we'll live in our own lone wolf world.
करेक्ट. जो बाद में दिक्कत देगा. अभी तो अच्छा चलेगा कॉलेज स्कूल लाइफ. वो बाद में दिक्कत आएगी. सही है, सही है. बिकॉज़ शुभम, इन द एंड वी आर ऑल सोशल एनिमल्स ना. जब याद है हम लोग 2 बजे बैठ के बात कर रहे थे कि इट्स ऑल हाँ अबाउट अस बीइंग लाइक सोशल एनिमल्स. वो नेचुरल इंटरेक्शन अगर है नहीं, देन व्हाट्स द पॉइंट यार. बॉट्स ही बन गए ना भाई, हम लोग. वही तो. People crib that bots आ रहे हैं, they'll take our jobs, they'll do this, they'll do that. Fucking keep your personality, भाई. करेक्ट. A bot can do a job. यस. इतने ज्यादा बॉट बिहेवियर्स हैं आजकल. पीपल ऑन चैट ले ले, पीपल इन रियल लाइफ ले ले, लोग बोलते ही नहीं है. बोलते ही नहीं है भाई लोग. सोशल मीडिया इतना पलटा पड़ा है. I have seen people be happy on social media and crying in front of me at the same point of time. लोग मेरे सामने रोते हुए स्टोरी डाल चुके हैं. And it's all because दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. It's a एग्ज़ैक्टली, little fuck all. It's a very little fuck all world. That's it. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली. Fuck man, this is like proper deep conversation that we wanted, and also people to hear ki just NFT या Web3 नहीं. I think I'll break हाँ, it down बहुत प्यार से. हाँ, बोल, बोल. बहुत सी पॉडकास्ट है, ठीक है, बाहर बहुत सी पॉडकास्ट है. Exactly. हमारी पॉडकास्ट कितने लोग देख लेंगे? 20, 30, 40, 50, 60, 100. बाहर बैठे हैं राज शमानी. बाहर बैठे हैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स जो जिन्होंने अपना नाम बिल्ड किया है भाई. Correct, जिन्होंने correct. रातों रात तो घिसी है टू बी ऑन दैट स्टेज जहाँ पे लोग उनकी बात सुने. Exactly. ठीक है. तो अब अगर हम इस पॉडकास्ट में भी, जहाँ पे वी नो कि वी कैन बी आवरसेल्व्स विदाउट बीइंग जज्ड इतना, अगर हम यहाँ पे भी ऐसे सीधे बैठ के बोलेंगे दैट वेब3 इज गुड, कम इनटू एनएफटीज, इट्स द फ्यूचर, तो पॉइंट ही नहीं है ना. अब Correct, यहाँ पे भी फेक है, बाद में जाके पता है फेक होना है, तो पॉइंट ही correct, क्या. correct, sir, correct. I know, right? You just, sometimes even PFP founders ना, उन लोग अपना खुद का एक बबल बना लेते हैं पूरा ट्विटर स्पेसेस पे ना. हाँ It's a complete different personality. But then, so what do you think, man? Is it the metaverse we're living in? भाई, मैंने आई थिंक आई रेड समवन्स स्टोरी, या Okay. कोई तो किसी ने ना पोस्ट या ट्वीट डाली थी हाँ. that metaverse isn't a phase or a age or Hmm. anything that you can see. Hmm. Metaverse would be a feeling. Okay. Metaverse would be when you stay in your goddamn homes Hmm. and stay on screen for the whole day and interact with people on screen only, and you Hmm. stop that physical interaction totally. Hmm. That's the next age of what's coming. Hmm. और जो हो रहा है भाई, मेरे दिन का स्क्रीन टाइम 10 घंटे है. किससे किससे झूठ बोलेंगे? मेरे घर भाई 2-2 घंटे अगर मैं ट्रैवल करता हूँ मेट्रो में, 3-3 घंटे, क्या करता हूँ? मैं फोन पे हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, मैंने लैपटॉप खोल लिया है, मैं गाने सुन रहा हूँ. आई एम डूइंग एनीथिंग एंड एनीथिंग टू पास द टाइम. Hmm. दैट इज बिल्डिंग अप टू दैट फीलिंग ऑफ मेटावर्स इनिशियल. मतलब Correct. वो धीरे धीरे आ रहा है. एंड it's a little scary of what's coming, क्योंकि it feels good बाहर से. वेब 2 के पर्सपेक्टिव से वेब 3 बहुत अच्छा है. Hmm. Anyone who is in web 2 working as a graphic designer at Amazon, he's feeling very jealous or very shitty about his own job because he knows कि भाई वो 30,000 रुपए कमा रहा है, and there are designers and artists out there जो 4-4 लाख कमा रहे हैं. Hmm. और दिक्कत यही है कि इस ट्रांजिशन को मॉनेटरी वैल्यू से लिंक कर दिया है. Hmm. लोगों ने वेब 2 टू वेब 3 जो भी सोचा है या whatever they know of is completely related to money. Correct. Exactly. हाँ. Completely. I can bet why anything. Hmm. सही है, सही है, सही है.
भाई मतलब मुझे खुद क्वेश्चन पूछा था ना तब हम जब हम हॉस्टल में थे कि वेब3 में क्या अच्छा है, मैंने खुद तेरे सामने बोला था कि पैसे अच्छे हैं, राइट? हाँ एंड आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट, राइट? एंड दैट्स भाई, हाउ इट इज देख, राइट नाउ। पता है अभी हम्म। ये जवाब या ये टॉपिक पैसे अच्छे हैं क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हम्म। चीज दिख रही है कि भाई साहब वेब थ्री में सिर्फ पैसे ही अच्छे हैं। हम्म। आई कैन बेट तू वो पैसे हटा दे, 90% ऑफ द स्पेस विल बी गॉन। You remove the factor of money or any monetary compensation, लोग दिखेंगे नहीं भाई कल डिस्कॉर्ड पे। there would be no करेक्ट। engagement on Discord, Twitter, anywhere. Twitter would go back to the old days भाई। जब हम्म। 2009 में या 2015 में ट्विटर था ना, जब सिर्फ वहां पे रिलीजियस और पॉलिटिकल डिबेट्स होती थी, हम्म। जब आज तक के नीचे वो स्निपेट्स आते थे लोगों के ट्वीट्स के, हम्म। एग्जैक्टली। will be easily back into that time भाई। ट्रू ट्रू ट्रू। ये सो यू नो व्हाट्स द वैल्यू देन कि हम वेब3 में ना, सी वी आर इनटू वेब3, राइट? we know all of this, हमें ये facts yeah पता है, we are around, we also know there's so many scams around, but we are still in web3, right? yeah And मुझे strongly लगता है हाँ पैसे के लिए तो है, definitely हम्म, पैसे अच्छे हैं, we travel, we get to meet a lot of fun people, we get to meet yeah some amazing founders और conversations अच्छे हैं, but then we're still in it, right? क्यों है? What are we seeing in this? हमें I'll tell you मतलब क्या मैं दिख रहा है इसमें? हाँ बोल। देख, हम्म। being completely honest, हम्म। me or I think most of the people that I know are in it because we think that we are early. हम्म। हमने अपने घर पे या हमने अपने आसपास ऐसे हालात देखे हैं जहाँ पे हमें पता है करेक्ट। कि भाई if you're early into an early into a space you can hit big. करेक्ट। So it's about that possible life changing point हम्म। which I personally do want. सही है। who सही है। who wouldn't want कि वो अपने अपनी या अपने घर वालों की लाइफ उल्टी कर दे? Who हम्म। wouldn't want the status that we are in which we are going through any phase that that isn't good? हम्म। कौन नहीं चाहेगा कि भाई वो चेंज हो जाए? सही है। You get me a job with the same salary as in web 3, but the job is in web 2 and I'll do it, but I'll still stay in web 3 because I know कि जो innovation यहाँ पे हो सकती है वो web 2 में बिल्कुल नहीं हो सकती। हम्म। करेक्ट। और उस इनोवेशन का पार्ट मुझे या बहुत लोगों को होना है। बनना है 100%, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ना, वो चाहिए हाँ, हमें। करेक्ट। क्यों भाई, अगर मिल रही है तो क्यों छोड़नी है? हम्म। Why would a person अपने आप छोड़ेगा भाई? कि मतलब if you are हम्म। getting an opportunity to fucking put the fucking put the IPO of Amazon 2000 जब वो लॉन्च हुआ था, हम्म। और आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा या आपको पता है कि it can be very very big, why wouldn't you do it? हम्म। Anyone देख, anyone who is not into web3 or is not getting into web3, जिसको नहीं आना, मतलब जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसको हटा दो, हम्म। उससे फर्क नहीं पड़ता। पर जिसको इंटरेस्ट है, जिसको पता है कि भाई वेब3 जैसा कुछ है, जिसको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें मैं जा सकता हूँ बट मैं नहीं जा रहा हूँ, हम्म। दैट इज बिकॉज ऑफ दो रीजन। पहला मेहनत है, क्योंकि घुसना मुश्किल नहीं है। सही मार्केट है। साल भर से मतलब मार्केट साल भर से चल रही है भाई वो। अब इंडिया में 10 कम्युनिटी मैनेजर्स गिनवा दूंगा मैं। हम्म। You'll have to provide something which 10 of us are not giving, right, to be करेक्ट। in front of us. करेक्ट। करेक्ट। अब जो बंदा मेहनत के चक्कर में नहीं आ रहा, वो तो यही सोच रहा है कि देखेंगे, और दूसरा बंदा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। आई टेल यू रिसोर्सेज किस मामले में नहीं है। कोई भी वेब3 इन्फ्लुएंसर या कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर सिर्फ ये बकवास चोटता है कि टेक द लीप, मूव योर मतलब टेक योर फर्स्ट स्टेप, मतलब कर दो, आज कर दो, कल मत करो, डोंट वेट फॉर टुमारो। अरे क्या करूं? व्हाट इज द करेक्ट। फकिंग लीप दैट आई हैव टू टेक हाँ भाई? सही है, सही है, सही बात। हवा में यार तो बहुत इजी है ना बोलना कि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इन वेब3, बट हाँ, करना क्या है भाई वेब3 में?
हाँ तो हाँ घुस गया, ठीक है, ट्विटर अकाउंट बना दिया, व्हाट नेक्स्ट? अब भाई कौन कौन बताएगा यू हैव टू फॉलो द टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स ऑन वेब3? कौन बताएगा कि यू हैव टू कीप अप द करंट अपडेट्स? कौन बताएगा कि आपको भाई ओपन सी पे, X2Y2 पे, ENS विजन पे, सब पे आपका अकाउंट होना चाहिए? हम्म कौन बताएगा कि आपको सेल्स ट्रैक करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू गेट इनटू अ गुड फ्लिप? ये सब चीजें बताने की होती हैं। ये सब चीजें ये नहीं होती कि बंदा घुस जाएगा तो अपने आप फिगर आउट कर लेगा। फिगर आउट ही करना होता तो साला पहली डील क्यों बना रहे हो कि टेक द लीप? इफ यू आर नॉट एबल टू टेल व्हाट्स द लीप, मतलब कोई तुम्हें बोले भाई कि पैराशूट लगा हुआ है कूद जाओ, बोलना कैसे है? क्या करूंगा कूद के? आई टेल यू, देयर इज अ गाय, you might know him, Arijit, in the space, and I was on a video call with him. And there was one point which he mentioned, which I really, really liked. He said there are projects out there who say we'll go to the moon. You know, we are shooting for the moon. We are doing this. We are doing this. और अरिजीत ने बोला, what do you do when you get to the moon? मतलब आप पहुंच गए, मतलब पहुंचे। आपका आपका एक ही फ्लोर प्राइस हो गया। अब you said ना you were innovating for the next 10 years. You have reached the milestone that you said that you want to reach in 10 years in 1 month. What now? इस स्पेस में अभी कोई भी लंबा नहीं सोच रहा अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू पीपल दैट आई नो। और लंबा मतलब भाई 10-10 साल। 10-10 साल, सही है, डिकेड, करेक्ट। हाँ, एटलीस्ट अ डिकेड। 2-2 महीने में प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, दे कम अप, दे गो डाउन, पीपल मेक मनी, पीपल लूज मनी, एंड देन पीपल कंप्लीटली इग्नोर द फैक्ट कि ऐसा कुछ हुआ था। एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, इस शिप में बैठते हैं, ये फट जाती है, अगले में चले जाते हैं, and the same cycle is going on and on and on in the space. Correct. अब पता है, अगर कोई, let's say if someone is watching this, ठीक है, and let's say वो यहाँ तक आया है, क्योंकि काफी लंबी वीडियो है, अगर वो बंदा यहाँ तक आया है और वो Web3 के अंदर नहीं है, तो उसके लिए आधी बातें सेंस बनाएंगे ही नहीं। You know the senior that I met recently, he said one line that Web3 is made by the developers for the developers. A normal consumer or the normal viewer in this space cannot take part, cannot take part in any of the processes. जो बंदा यूपीआई करने में हिचक रहा है, you cannot expect them कि वो यूनिस्वैप पे जाके अपना ETH चेंज करेगा USD से और फिर कुछ ओपन सी पे जाके बाय करेगा। ये नहीं होगा। इट्स ऑल इंडियन लैंग्वेज टू देम भाई। इंडिया में लोग प्रोजेक्ट इसलिए रिलीज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इंडिया में पैसा नहीं है। इंडिया हैज मोर मनी देन यू कैन इमेजिन। देयर आर पीपल सिटिंग इन फकिंग चांदनी चौक जिनके जेब में 100 BTC है भाई। तुम्हें क्या पता हु स्पीक्स इट आउट लाउड। इंडिया में पैसा बहुत है, उस बंदे को समझाओ तो कि लगाना कहाँ और क्यों है। समझा ही नहीं पा रहे हैं और समझाना चाह भी नहीं रहे हैं। आधे DeFi प्रोटोकॉल्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एक एवरेज नॉन टेकी रोल के लिए कि आधे नॉन टेक रोल्स जो साला Web3 में ही काम करते हैं उन्हें समझ नहीं आता। When I went to Dubai, I met Vrushal. Okay. And Vrushal is working for Supra Oracles. I fucking did not know what Oracles was. What did it do, भाई? और साला मुझे समझने में लग गया आधा घंटा विशाल भाई के साथ बैठ के। Exactly. अब अगर मुझे ही आधा घंटा लग रहा है तो भैया जो बंदा Web3 में ही नहीं है वो तो अपना सर फाड़ रहा है दीवार पे। There's no point of him in this space. Exactly. अगर किसी ऐसे बंदे ने ये पॉडकास्ट देखी है जो Web3 में नहीं है, उसके 40 मिनट बर्बाद हुए हैं। To understand this podcast, you have to be in Web3. You realize हमने टॉपिक में क्या लिखा,
We took Hmm. community management, psychology, and Chacha. Now this is a Web3 podcast. Correct. This is not a Web2 podcast. अगर ये Web2 podcast होती तो हो सकता है टॉपिक ही अलग होता. Exactly. ये ऑनबोर्डिंग वाली बात आ जाती है और True. ऑनबोर्डिंग True. इस True. मामले में नहीं है कि आप किसी को बोल दो कि मेटामास्क अकाउंट ऐसे बनाना है. Hmm. बना लिया. अब मेटामास्क अकाउंट बनाना 2 मिनट का काम है. Exactly. अब क्या? Say it. You know, like Gaurang Bhai says, right? It's, you know, Web3 is all about learn to earn, right? हाँ. पहले तुम्हें खुद सीखना होगा ना. It always comes from right now. Whoever is in the space, they've done it by themselves. खुद गए Discords पे, खुद गए Twitter पे, you know, and they've learned, you know. So I tell you. we just have another 3 minutes left. So yeah, just saying. Yeah, before तो we end. नेक्स्ट मीट पे जाना है या बंद करना है बताओ. I think we can stop. We can end it within 2 minutes. चलो. Yeah. हाँ. So क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी है. exactly. So tell us one last take, na? Because we have like really less time. Tell us one last take कि क्या है ना? I'll still say this, what I say after the end of every space that I attend. You have to go out in the space to get into the space. Correct. The more people you meet is the more people you understand, and you have to understand people to understand a space. Perfect. It's quite clear. Start working on it. Perfect. Yeah. Bye. हमारा ना रात में होता है these kind of, you know, wholesome conversation. ये it starts after 10 by 10-11 से शुरू होता है. It goes on till 2. True. Yeah. शुभम भाई, बहुत मुझे लगा ही नहीं कि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे, राइट? It was like it's just you and I talking. बस बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया, है ना? So yeah, thanks everybody for watching this, and you know, we'll also be sharing some small snippets on both of our Twitter, and go follow shubhamtotu.eth. I'll be linking his Twitter, you know, down in the description, and such an amazing person, man. All right, and it would have been impossible if he didn't come to Bangalore. ये podcast कभी होता ही नहीं, right? So that's what he's mentioning, है ना? पूरा भाई वाला conversation था, proper, you know, no layers की. वो रहता है ना दूसरे podcast में, मतलब कि ये बोलना वो बोल, nothing, just clear cut what is Web3, and that's all, है ना? Perfect. Yeah. All right then, Shubham bhai, it was great talking to you again. All right. And maybe sometime, you know, maybe in a few weeks or something, we could do a part 2 as well. हाँ, ऑफ कर दिया, है ना? क्या पता मैं बैंगलोर ही आ जाऊं भाई. Exactly. सही है, है ना? All right then, Shubham. Yeah. All right, चलो, bye bye.